section formula. Origin, x-axis, y-axis. We have given that 2 points, P x1 y1 and Q x2 y2. Any point R xy divides P2 internally into ratio m1 ratio m2. Draw perpendiculars from P, Q and R on x-axis. Now draw perpendiculars from P, R and Q on x-axis. x-axis पर P से PM, R से RM और Q से QS परपेंडिकुलर ड्रा करना है. इसके बाद P से आफ्टर इट ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम P to RN. ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम P to RN. इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में. P, अब इसका नाम ले देता हूं PA. तो PA परपेंडिकुलर टू RN. PA परपेंडिकुलर टू RN and draw perpendicular to R from R to QS. Draw from perpendicular from R to QS. इसका नाम दे दें RB. RB perpendicular to the QS. Okay. You get two triangles REP and QBR. दिख रहा है दो ट्रायंगल्स and both are right triangles क्योंकि परपेंडिकुलर है. तो ये एंगल राइट एंगल है और ये एंगल सेम होंगे. क्यों होंगे सर? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. Corresponding angles will be same. Then triangle PRA and RQB will be similar triangle. Since triangle PRA similar to triangle RQB, so PA upon RB ये अपन RB is equal to AR upon QB is equal to PR upon RQ. PR upon RQ. We have given that PR upon RQ is equal to M1 upon PR upon RQ is equal to M1 upon M2. आप PQ को M1 रेशो M2 में डिवाइड करता है इंटरनली. इसका सेंस क्या हुआ कि यदि हम PR upon RQ करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? M1 upon M2. Now we get PA upon RB. PA upon RB is equal to AR upon QB is equal to M1 upon M2. We want to find out the value of R, X, Y. We want to find out coordinates of R, it means value of X and Y. अब हमें क्या करना होगा? PA, RB, P की वैल्यू भी दी हुई है, Q की भी दी हुई है, R, X, Y. तो O to M distance will up from O to M will be what? O से M की दूरी कितनी होगी? X1. O to M X1. O to N कितना होगा? R कितना है? X. O to N X और O to S X2. ये 3 डिस्टेंसेस हमें मालूम है. अब इसके बाद P to M, P से M तक कितनी होगी? Y1 है ये Y1. R to N Y and Q to B Y2. You can find out value of PA and RB. PA is equal to
PA equal to MN. Distance between two parallel lines will be same. दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है और PM और RN क्या है? पैरेलल लाइन से. क्यों पैरेलल लाइन से? बिकॉज PM एंड RN आर परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस और x एक ही x पे यदि टू परपेंडिकुलर से तो क्या होंगे? पैरेलल होंगे. तो PA इक्वल टू MN एंड MN को क्या लिख सकते हैं हम? MN इज इक्वल टू ON माइनस ON नोट कर सकते हैं. ON की वैल्यू हमें मालूम है, ON माइनस ON. सो वी गेट PA इज इक्वल टू ON कितना है? X माइनस ON X1 एंड RB. नाउ RB इज इक्वल टू NS. RB इज इक्वल टू NS एंड NS इक्वल टू O2S माइनस ON. OS minus ON and value of OS will be value of OS कितना है? by x2 और ON कितना है? ON RB equal to x2 minus x. PA की वैल्यू मिल गई, RB की मिल गई, AR की निकाल लेते हैं. Then AR value of AR is equal to AR. We can write it RN minus AN. RN minus AN नोट कर सकते हैं इसको. RN minus AN और RN minus टोटल डिस्टेंस कितनी है? ये RN कितनी है? Y. AN कितनी है? तो एक बार अपन इसको और नोट कर देते हैं. एम्प्लाइज दैट RN इज इक्वल AR इज इक्वल टू RN माइनस PM. क्यों PM हो गया? AN एंड P से हमने परपेंडिकुलर क्या किया है? X एक्सिस की पैरेलल होगा तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी. तो PM और अब ये क्या करते हैं? RN की वैल्यू Y माइनस. सिमिलरली QB and QB. वैल्यू ऑफ QB कहा गया? QB इज इक्वल टू QS माइनस BN. QS माइनस BS. ठीक है? QS माइनस BS एंड BS इज इक्वल टू RN. BS इज इक्वल टू QS माइनस RN. सो वी गेट QB इज इक्वल टू imply that QB is equal to QS कितना है? Y2 minus. So we can write it PA upon RB. PA value of PA X minus X1 whole upon RB. RB is equal to X2 minus X is equal to AR. Y minus Y1 is equal to QB. QB is equal to Y2 minus Y is equal to M1 upon M2. Now we get from X2 minus X minus X1 upon X2 minus X is equal to M1 upon. इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन तो क्या हो गया? M2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया. M2X माइनस M2 X1 इज इक्वल टू M1 X2 माइनस M1 X. ओके. M2X प्लस M1 X इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1. ये X को हमने वन साइड कर लिया. M2X उधर से लाए माइनस पे क्या हो गया? प्लस M1X. और ये था हमारा M1 X2. इधर से ले आए हमने माइनस को, ये प्लस हो गया M2 X1. टेक आउट कॉमन X. we get X M1 plus M2 is equal to M1 X2 plus M2 X1 whole upon अभी चल रहा है X. so X is equal to M1 X2 plus M2 X1
अपॉन m1 प्लस ये वैल्यू किसकी मिल गई x की y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? कर लोगे तो अपने को y इक्वल टू क्या मिलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यही फार्मूला क्या कहलाता है? सेक्शन फार्मूला। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ r विल बी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये काफी लंबे समय तक यूज होगा ये सेक्शन फार्मूला। अब थोड़ा सा ध्यान से देना है, यहाँ रेशो में जरा भी तुमने गड़बड़ की। यदि वो कह रहा है PQ को m1 रेशो m2 में डिवाइड करता तो हम ये नहीं कह सकते कि QP को m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है। यहाँ फिक्स है x1 y1 कौन होगा और x2 y2 कौन होगा। यदि क्वेश्चन सेज कि PQ divided by R into ratio m1 m2, it means coordinates of P will be x1 y1 and coordinates of Q will be x2 y2। और m1 रेशो m2 क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स जो PQ है फर्स्ट रेशो m1 को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? इससे। और m2 किधर आ रहा है? m1 x2, m1 को टू सेकेंड हैंड से और m2 को फर्स्ट हैंड से। तो जिस PQ यदि दे रहा है तो उसमें राइट सेगमेंट को आप PQ की जगह QP नहीं कर सकते हो। यदि QP कर रहे हैं तो रेशो भी फर्क है रेशो में। और जिस एंड से ले रहे हैं उसका फर्स्ट एंड क्या होगा? x1 y1, सेकेंड एंड क्या होगा? x2 y2। और यदि एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो यहाँ हो जाता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस m2 y1 m1 माइनस m2। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि प्लस का जो साइन है वहां पर क्या कर दोगे? माइनस साइन कर दोगे तो आर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन ड्राइव नहीं करना है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यूज नहीं होगा, लेकिन फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर व्हेन the point where bisectors of angle intersect, that point is called in center of triangle। वो बिंदु, वो पॉइंट, वो प्रतिच्छेद बिंदु या वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पर कोणों के अर्धक, कोणार्धक बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स मीट, दैट पॉइंट इज नोन एज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। व्हाट इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल? तो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल is the intersecting point where bisectors of angle meets। जिस पॉइंट पर एंगल बाइसेक्टर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इन सेंटर, अंतः केंद्र हिंदी में। और पूरी हिंदी में कहा जाए कि त्रिभुज के कोणार्धकों को, त्रिभुज के कोणार्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को, त्रिभुज के कोणार्धक के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में तो बता ही रहा हूं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एन ट्रायंगल इज नोन एज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो पहली चीज तो ये मालूम होनी चाहिए व्हाट इज इन सेंटर को, जो आप लोग पढ़ चुके हो लेकिन मालूम नहीं होगा, मुझे मालूम है इसलिए बता रहा हूं कि एंगल बाय इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ angle bisectors is known as in center of triangle। one thing, इन सेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल में जब भी हम वो करते हैं तो एंगल के सामने की जो साइड होती है उसको उसी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ए की साइड में, फ्रंट साइड को ए से, एंगल बी की फ्रंट के साइड को बी से, और लेंथ ऑफ साइड बी सी, इट इज फ्रंट ऑफ एंगल ए, सो इट इज डिनोटेड बाय ए। वेयर एंगल बी के सामने कौन है? AC। तो
इसको डिनोट करेंगे लेंथ ऑफ साइड ऑफ AC की लेंथ को हम किससे डिनोट करेंगे, B को, या दूसरे रूप में ध्यान रखो कि जिसमें जो नहीं है AB का C, AB की लेंथ क्या होगी C, BC की लेंथ क्या होगी A, और CA की लेंथ D। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना इस फार्मूले को अप्लाई करते समय, क्योंकि जब भी एक फार्मूला यूज होगा हमें वर्टिसेस दिए जाएंगे, हम AB BC CA निकालेंगे। तो जो AB है वो कौन सी साइड है, C है, जो BC है वो कौन सी साइड है, A है, और जो CA है वो क्या हो जाएगा, B। वन थिंग। सेकंड थिंग, इसमें जो फार्मूला है एंगल ऑफ M, ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ M विल बी A into side A into x1 plus B into x2 plus C into x3। A into x1 इनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3। एंगल के सामने A, तो A into x1 B into x2 and C into x3। जिसके फ्रंट में है वो साइड और वो वर्टिसेस का वो कोऑर्डिनेट ax1 plus bx2 plus cx3 ध्यान रखने के लिए अपान a plus b plus c। और सेकंड y is equal to ay1 plus by2 plus cy3 अपान a plus b plus c। तो इतना ध्यान रख लोगे कि एंगल के फ्रंट की साइड क्या है, उसकी साइड से एंगल a के सामने की साइड a, b के फ्रंट की साइड b और c के सामने की साइड c। और एंगल इनटू कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, x के कोऑर्डिनेट्स को x से कर दो, एंगल a है तो a into x1, b है तो b into x2 और c है तो c into x3 अपान a plus b plus c। सिमिलरली y के लिए a into y1 plus b into y2 plus c into y3 अपान a plus b plus c। एक या दो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ज्यादा नहीं है, फिर भी इंसेंटर मैंने बता दिया। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ये क्वेश्चन के रूप में दिया जाता है। Centroid of triangle, if you have given the vertices of triangle, then find out the coordinates of centroid। centroid क्या है, कोई बताएगा? जैसे मैंने ये बताया कि इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या है, वैसे कोई बता सकता है आप में से कि आपको ये डिफाइन कर रहा हूं कि व्हाट इज सेंट्रॉइड, केंद्रक क्या है? ट्रायंगल का मिड पॉइंट, ट्रायंगल का मिड पॉइंट intersecting point of medians of triangle, intersecting points of medians of triangle is known as centroid। किसी भी त्रिभुज के माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को, किसी भी त्रिभुज के माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को उसका केंद्रक कहते हैं। The point where medians intersect each other, the point where medians of triangle intersect each other is known as centroid। तो centroid is that point where medians meet to each other। centroid वो पॉइंट है जहां पर मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अगर 3 मीडियंस होती है इसकी और 3 की 3 मीडियंस जा करें तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से होकर जाती है, ये पास करेंगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेंगी और इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड जो है वो हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि यही इसका मैं 3 में कहां से शुरू करेंगे, तो सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। We have given that vertices of triangle x1 y1 a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3। Draw median AD, draw a median from A to front side BC। median हमेशा किससे कनेक्ट होगी, मिड पॉइंट ऑफ फ्रंट साइड। median means mid point of front side, so D will be mid point of BC, so AD will be median। if D is mid point of BC then AD will be median, and when D is midpoint it means D divides BC into ratio 1 into 1:1। और कल हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, x is equal to m1 x2 plus m2 x1 अपान m1 plus m2। यदि m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू 1 है, तो कभी भी मिड पॉइंट क्या होगा,
1 1 रखते हैं हम यहाँ x2 प्लस x1 अपान 1 प्लस 1 इट मीन्स 2। तो जब भी आपको सेंटर पॉइंट निकालना है मिड पॉइंट, तो दोनों को सम कर दो, x कोऑर्डिनेट्स को हाफ से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो। सिमिलरली y का y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपन तो कोऑर्डिनेट्स आप दी विल बी b के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और c के कोऑर्डिनेट्स है x3 y3 एंड d इज द मिड पॉइंट ऑफ PC। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b विल बी x2 प्लस x3 upon 2 and y2 plus y3 upon 2। Again draw a median B from B to mid माने AC side AC, then it intersect at point G, then G will be centroid of triangle। माने हम कह रहे हैं दो मीडियन हमने खींचा, तीसरे की जरूरत नहीं है, टू मीडियन हमने ड्रा किया, AD कर दी और एक B कर दी, तो AD और B इंटरसेक्ट कर रहे हैं G पे, तो तीसरी मीडियन भी किस पर इंटरसेक्ट करेगी G पर, तो G सेंट्रॉइड हुआ। अब G के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, E के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम है, और सेंट्रॉइड जो है वो AD को किस रेशो में डिवाइड करता है 2:1। सिंस सेंट्रॉइड G डिवाइड्स मीडियन AD into रेशो 2:1, क्योंकि केंद्रक माध्यिका AD को 2:1 में विभाजित करता है, इसलिए सेक्शन फार्मूला ये नोट किया मैंने। M1H2 M1 क्या हो गया AD, हमने नाम कर दिया AD को, मीडियन AD को कितने रेशो में 2:1, तो M1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, वैल्यू ऑफ M1 विल बी 2, M2 विल बी 1। A starting point है, then it will be x1 y1 and T is ending point, so T will be x2 y2। Now substitute values, M1 2 into x2, value of x2 is x2 plus x3 upon 2, 2 into M1 into x2, value of x2 is x2 plus x3 upon 2 plus M2 is 1 into x1, तो 1 into x1 whole upon M1 plus M2, M1 2 and M2 1। Similarly y is equal to M1 y2, तो M1 2 हुआ और y2 की वैल्यू है y2 plus y3 upon 2, तो y2 plus y3 upon 2 नोट कर दिए, 2 से 2 कैंसिल होगा, प्लस M2 y1, M2 कितना है 1 और y1 जो 1 into y1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, M1 plus M2 plus y3, x is equal to, अब अपन को मिला x1 plus x2 plus x3 upon 3, y is equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3। तो coordinates of centroid will be always x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y is equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3, and sum of x coordinates upon 3 and sum of y coordinates upon 3। ये हो जाएगा आपका सेंट्रॉइड। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सेकंड का क्या होगा, मिड पॉइंट के लिए a माइनस बी c माइनस डी एंड a प्लस बी सी प्लस डी। ओरल बताओ क्या होगा, a माइनस बी प्लस a प्लस बी, b से b कैंसिल, a प्लस a 2a, a से 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया a, और c माइनस डी प्लस c प्लस डी अपॉन 2, तो d से d कैंसिल, 2c अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिल गया c, a c, a कॉमा c क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। Second question, find the coordinates of point which divides the line segment joining the point -1, 1 and 6, 8 in the ratio 3, 4 internally। अब ये सीधा सीधा दे रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट करो कि x1 y1 is equal to 3 minus 1 1, ये हमें दिया हुआ है, हिंदी में बोलते हैं दिया हुआ है, and b x2 y2 is equal to 6 and m1 ratio m2 3 ratio 4, और कह रहा है इंटरनली डिवाइड किया प्लस। अब हिंदी वाले लिख लेंगे अंतःखंड सूत्र और इंग्लिश में नोट कर दो सेक्शन फार्मूला, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला
एक बार फार्मूला नोट कर दो, सेक्शन फार्मूला x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। सब्स्टिट्यूट वैल्यू, अब स्पष्ट वैल्यूज दिख रही है। देन x इज इक्वल टू m1 के प्लेस पर क्या लिख रहा 3, x2 के प्लेस पर क्या लिख रहा 6 प्लस m2 के प्लेस पर क्या लिख रहा 4 और -1 अपान 3 प्लस y इज इक्वल टू m1 3 y2 8 प्लस m2 4 y1 1 अपान 3 प्लस 4 है ना जी। हो गया, आंसर आ गया आपका। 3 into 6 कितना हो गया 18 minus 4 15 3 plus 4 7 y is equal to 8 24 plus 4 28 4। तो x is equal to 2 and y is equal to, यही आंसर हो जाएगा। तो वो 0.24 होगा जो ए बी को नाम भी दे दिया मैंने, ए बी को 3:4 में इंटरनली डिवाइड किया। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच जिसमें डिवाइड इंटरनली एंड एक्सटर्नली द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 -4 and -8 -7 इन द रेशो 7:5। इसमें इंटरनली का लगा फार्मूला, इसमें इंटरनली भी लगेगा और एक्सटर्नली भी लगेगा। ये फार्मूला अप्लाई कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन आप लोग बना लेना। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्रांसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 -2 एंड 4 फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1 -2 एक लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रहा है 1 -2 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट दिया है -3। इसको ट्राइसेक्टिंग समान 3 भागों में, ट्राइसेक्टिंग मींस ए बी को इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, समान 3 भागों में डिवाइड करो। ये मान लेते हैं सी और डी, 2:1। सी डिवाइड्स। अब सी डी अपने को सी डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं सी और डी 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसको इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो कोई बता सकता है कि सी ए बी को किस रेशो में डिवाइड 2:1। 2:1। सी डी ए बी को सी किस रेशो में डिवाइड? कौन सर? ए बी को सी 1:2 1:2 और ए बी को सी 1:2 में डिवाइड करेगा। मतलब ए सी अपान सी बी इज इक्वल टू 1:, एंड डी ए बी को किस रेशो में डिवाइड करेगा? 2:1। 2:1। तो डी क्या होगा? ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू 2:1। अब अपने पास कुछ नहीं है, सीधा फ्रॉम सेक्शन फार्मूला या सेक्शन फार्मूला नोट कर दो। सेक्शन फार्मूला x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। सिंस C divides AB, since C divides AB into 1:2, since C divides AB into 1:2, coordinates of A x1 y1, coordinates of B x2 y2। तो x is equal to m1 कितना है 1, x2 कितना हो जाएगा -3,
1 into minus 3 plus m2 2 into x1 1 1 plus 2 y is equal to Minus 5 by m1 1 y2 4 plus m2 2 और y1 minus 2 अपान 1 plus 2 सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या मिल जाएगा x is equal to minus 3 plus 2 minus 1 अपान 3 और y is equal to 4 minus 4 which means तो c के कोऑर्डिनेट्स हो गए minus 1 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ c अपन ने नोट किया कोऑर्डिनेट्स ऑफ c is equal to minus 1 coordinates of D since D divides AB into ratio into 2 ratio 1 अब m1 की वैल्यू हो गई वो चेंज हो गई यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है x is equal to 2 into minus 3 plus 1 into 1 upon 1 plus 2 y is equal to ये रेशो पहले नोट किया था मैंने फिर 2 रेशो 2 into 4 plus 1 into minus 2 upon फार्मूला वही है रेशो बदला है अब इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा x equal to minus 6 plus 1 कितना हुआ minus 5 upon 3 x is equal to minus 5 upon 3 and y is equal to 2 into 4 8 minus 2 6 6 upon 3 2 तो y is equal to coordinates of D will be minus 5 upon 3 2 ये क्वेश्चन हो गया फोर्थ आपका अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे Triad of the triangle whose vertices are बहुत इजी क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3 ये अपने को एक लाइन नोट करना है we have given that क्या है a x1 y1 is equal to 4 minus 6 b x2 y2 ना लेनी अपने मन से कर दो x2 y2 is equal to 3 minus 2 and c x3 y3 is equal to कितना है 2 5 9 बटे 3 x की वैल्यू 3 सीधा सीधा देखा कि x1 4 plus 3 plus 2 7 plus 2 9 upon 3 3 हो गया minus 6 minus 2 plus 5 minus 6 minus 5 minus 3 by 3 1 minus 1 हाँ then centroid then coordinates of centroid बस इतना नोट करना है coordinates of centroid is equal to 4 plus 3 plus 2 upon 3 minus 6 plus minus 2 plus 5 upon 3 is equal to ये हो गया अपना 3 और ये कितना हो गया minus 1 माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेट ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल whose vertices are एक क्वेश्चन दिया हुआ है वी हैव 6 का फर्स्ट मैं बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए x1 y1 इज इक्वल टू 6 7 4 minus 2
4 minus 2 bx2 y2 is equal to 2 minus 2 4 and c x3 y3 ये एंड का साइन है एम्परसेंड साइन कहते हैं एंड के लिए लगाते हैं किसी को कंफ्यूजन हो गई पूछना है 5 अपने को क्या फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर और कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर का भी फार्मूला लिखना है सिंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ax1 bx2 cx3 upon a plus b plus c ठीक एंड a y1 plus a y b y2 plus c y3 upon a plus b plus c तो रिक्वायर क्या है हमें इस सेंटर के लिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 हमारे पास है लेकिन we have not what a b c फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के हाँ फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला वही था ना कौन सा a is equal to bc a is equal to अब यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है bc लिया इसमें a नहीं है a equal to bc is equal to under root 5 minus minus plus 2 whole square plus 5 minus 4 whole square ठीक x2 minus x1 whole square plus y2 minus y square implies that a is equal to bc is equal to 7 का square 49 plus 1 का square 150 तो अपन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं 5√2 50 को क्या कर सकते हैं 5√2 5√2 25 into 2 तो 5 BC and B is equal to B नोट करके B is equal to AC is equal to AC में क्या आ जाएगा 5 minus 4 1 whole square plus 5 plus 2 whole square तो ये भी कितना आया 5√2 B is equal to AC equal to 5 root 5 plus 2 7 square of 7 49 Yes. plus square of 1 1 plus 49 50 and C is equal to AB is equal to B का क्या है B minus 2 minus 4 whole square plus minus 2 minus 4 square plus 4 plus 2 whole square यहाँ ध्यान रखना minus 2 minus 4 36 plus 4 minus plus 2 whole square कितना है 6 square plus 36 6 square 36 plus 36 72 6 root 2 and like that C is equal to AB is equal to 6 root 2 अब अपने पास कोई कमी नहीं है ABC भी है और x1 y1 x2 y2 x3 y3 है so coordinates of in center coordinates of in center is equal to a into x1 अब x1 किसको लोगे a into x1 5√2 into 4 into चलो अलग अलग दिखा देते हैं x is equal to 4 into 5√2 plus b into x2 5√2 minus 5 कितना था x2 minus 2 into 5√2 plus c 6√2 into x3 कितना है 5 upon 5√2 a plus 5√2 b plus 6√2 c
एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, सब में √2 है ऊपर नीचे, उसको निकाल के कॉमन कैंसिल कर दूं तो 4 इंटू 5 20, 20 माइनस 10 10 और 10 प्लस 30 40 हो गया। डायरेक्ट लिख दूं ना, अपन √2 ये भी कॉमन हो गया, 5 प्लस 5 10 प्लस 16, तो इसको भी x is equal to 5 upon 2 and y is equal to y1 a into y1, तो माइनस कितना है 2, 5 into minus 2 into 5 into प्लस b into b कितना है 4, 4 into 5 into प्लस c 6 root 4 into 5 root 2 और 6, ये कितना होगा 5 into 6 root 2, 5 into 6 root 2 होल अपॉन 16 root 2। डायरेक्ट नोट कर दूंगा, सम करके नोट कर दिया। एम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना होगा 10 20, तो यहीं पे 10 root 2 10 और 10 प्लस 30 root 2 कितना हो गया 40 root 2, ठीक है। 40 root 2 अपॉन 16 root 2, root 2 से root 2 कैंसिल, 5 अपॉन, तो इन सेंटर क्या हुए 5 अपॉन 2, 5 अपॉन इन सेंटर इज इक्वल टू 5 बाई 2, 5 बाई, फार्मूला में अप्लाई करना। ये जो तुम्हारा 6 क्वेश्चन, अब 7 to 14 क्वेश्चन मैं ये दे देता हूँ वीडियो से, करके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13D। इन व्हाट रेशियो डज द x axis and the y axis divides a line segment joining the points 5 3 and 10 minus 8। 5 3 and 10 minus 8 को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन को या लाइन सेगमेंट को x एक्सिस एंड y एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करती है। x एक्सिस एंड y एक्सिस AB को 5 3 और 10 माइनस 8 को डिवाइड करने वाली लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करते हैं। अब यहां पर हमारे पास क्या है x1 y1 x2 y2 है और ना रेशो है ना उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, लेकिन एक हिंट दी हुई है कि x एक्सिस किस रेशो में एक्ट करेगी, तो x एक्सिस पर 1.0 होता है। जब भी हमें रेशो निकालना होता है, यदि हमें रेशो निकालना है तो रेशो में कोई एक कोऑर्डिनेट यदि हमें मालूम हो तो हम रेशो निकाल सकते हैं, क्योंकि रेशो के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट ही रिक्वायर होता है। तो यहाँ पर x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट्स पर x एक्सिस वी हैव गिवन दैट ax1 y1 equal to 5 3 and bx2 y2 is equal to 10 minus 8। हम सपोज करते हैं कि लेट x एक्सिस इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट AB at point C into ratio lambda ratio 1। We suppose let line segment AB x axis intersect line segment AB at point C into ratio lambda ratio 1 into lambda ratio 1। Then by the section formula coordinates of intersecting point should be lambda into 10x equal to 10 lambda plus 5 upon lambda plus 1, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। So coordinates of intersecting point x equal to 10 lambda plus 5 upon lambda plus 1। Similarly y is equal to m1 y2 minus 8 lambda plus m2 y1 1 into 3 minus 8 lambda plus 3 upon lambda plus 1। Since at x axis coordinate of C, coordinate of y coordinate of C will be 0, since at x axis y is equal to 0, so
substitute value of y equal to 0, we get minus 8 lambda plus 3 upon lambda plus 1 equal to 0. Cross multiplication by cross multiplication, we get minus 8 lambda plus 3 equal to 0. So minus 8 lambda equal to minus 3, so lambda equal to minus 3 upon minus 8, so lambda equal to 3 upon 8. तो हमें क्या मिल गया कि ये जो लाइन सेगमेंट AB को x एक्सेस 3 upon 8 रेशो में डिवाइड करती है. अगेन इफ y एक्सेस डिवाइड्स AB इन लैम्डा रेशो 1, यदि y एक्सेस भी इसको किस रेशो में डिवाइड करती है, AB को लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड करती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D विल बी x इक्वल टू, यही कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 10 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 8 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1. बट एट y एक्सेस x is equal to 0. At y axis coordinate of D at y axis y coordinate will be 0 since it lies on y axis. चूंकि ये y axis पर स्थित है, इस कारण से इसका x coordinate क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो x coordinate को हमने 0 कर दिया. 10 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो हमें क्या मिल गया, लैम्डा प्लस 1 0 हो गया. 10 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल. क्वेश्चन नंबर 8. In what ratio does the point 1 upon 2, 3 minus 2 divide the line segment joining the points 3 minus 5 and minus 7, 9? So we have given that 2 points A x1 y1 is equal to 3 minus 5 and B x2 y2 equal to minus 7 upon 9. And question gives us coordinate of intersecting point P xy is equal to 1 by 2 minus 3 by 2. Let P divides AB. रेशो नहीं दिया हमें, पूरे प्रश्न में हमें पॉइंट्स दे दिए, तीनों पॉइंट्स दे दिए जो लाइन सेगमेंट के बोथ एंड्स के पॉइंट्स हैं, और साथ ही वो पॉइंट भी दे दिया जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के जिस रेशो में डिवाइड कर रहा है. तो रेशो को छोड़कर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दे दिया. अब अननोन क्या है, रेशो है. तो हम क्या करेंगे, m1 m2 नहीं मानते, लैम्डा रेशो 1. इसमें फार्मूला बिल्कुल ध्यान रखो कि व्हेन लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड करता है तो फार्मूला हो जाता है लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और वैल्यू रख दो. तो लेट P डिवाइड्स AB इनटू रेशो लैम्डा रेशो 1, देन बाय सेक्शनल फार्मूला लैम्डा x2 माइनस 7 लैम्डा प्लस 3 माइनस 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 by 2 एंड लैम्डा y2 9, y2 कितना 9, तो 9 लैम्डा प्लस y1 माइनस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 by 2. एक्स वाई के कोऑर्डिनेट दिए हुए, वैल्यू रख दी हमने. अब किसी एक को भी सिंप्लीफाई करोगे या दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों में लैम्डा की वैल्यू सेम आना चाहिए, और सेम ही आएगी, अलग अलग नहीं आ सकती. तो केवल एक को सिंपली जब रेशो निकालना हो तो एक ही इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं. अब इसको सॉल्व करते हैं. 2 इंटू माइनस 7 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1, और मल्टीप्लाई किए तो माइनस 14 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1. माइनस 14 लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस 6, we get minus 15 lambda is equal to minus 5 lambda is equal to minus 5 upon 15. So we get lambda is equal to 1 by 3. इसका मतलब है कि जो लाइन सेगमेंट AB दिया था उसको पॉइंट P 1 by 2 minus 3 by 2 1:3 में डिवाइड करते हैं. तो ये था 8th 9th क्वेश्चन. सेम है 10th क्वेश्चन. अब देखो आप, the coordinates of the end point of the diameter of a circle are 3, 5. ये दे रहा है, डायमीटर की बात कर रहा है, व्यास होता है इसका मतलब 3, 5. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर इज 6, 6. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर पॉइंट ऑफ द डायमीटर. ये अपने नॉलेज पे दिया गया है. ये कह रहा है कि एक सर्किल है जिसके एक एंड के कोऑर्डिनेट्स 3, 5 हैं, और सेंटर के डायमीटर के सेंटर के व्यास के एक सिरा, व्यास का एक सिरा 3, 5 है, दूसरा सिरा अननोन है, और सेंटर जो है
केंद्र के निर्देशांक 6 है। वी हैव गिवन दैट 1 end of diameter, coordinates of 1 end of diameter and center of circle, coordinates of center of circle, and second coordinates of second end is unknown. We know that center O divides diameter into ratio 1:1. It means center O is the midpoint of AB. Center O is the midpoint of AB. कभी भी डायमीटर सेंटर जो है डायमीटर का मिड पॉइंट होता है और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। हमने इसको सपोज कर लिया, सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ b x y। यदि इसके कोऑर्डिनेट्स x y है, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेकंड एंड b x y, center of circle is 6 since center of circle is the midpoint of diameter, so x plus 3 upon 2 is equal to 6। x plus 3 upon 2 should be equal to 6 and y plus 5 plus y upon 2 should be also equal to 6। Simplify it, x plus 3 equal to 12, x equal to 9 and y plus 5 equal to upon 2 equal to 6, then y plus 5 equal to 12. So y is equal to 7, then answer will be 9 7. Coordinates of second end will be 9 7. Question number 11. The coordinates of the center of a circle are -2 -3. If AB is a diameter of the circle and coordinates of A are -1 4, find the coordinates of B। तो ये सेम क्वेश्चन था 10th क्वेश्चन का। इसको बना लेना एक्स वाई लेके, ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा सेंटर, और एक 1 एंड दिया हुआ है, सेकंड एंड के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ले लेना। 12th क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स -2 -1 1 0 x3 and 1 y form a parallelogram, find the values of x and y। 12th क्वेश्चन सेज, हमें दिया गया है क्वेश्चन सेज कि -2 1 1 0 x3 and 1 y फॉर्म ए पैरेललोग्राम। यदि ये 4 पॉइंट्स को ग्राफ पे ट्रेस किया जाए तो ये एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यदि ये 4 किसके वर्टिसेस हो, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हो, तो ऐसी कंडीशन में एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर इनटू रेशो 1:। सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट मिड पॉइंट आर 1:1। जो पैरेललोग्राम के माने डायगोनल से विकर्ण है, वो एक दूसरे का इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन्हें 1:1 में डिवाइड करता है। अर्थात जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है दोनों ही डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम में या समांतर चतुर्भुज में डायगोनल्स एक जिस प्लेस पर एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब बीडी का जो मिड पॉइंट होगा वही एसी का भी मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या है, एसी और बीडी के मिड पॉइंट ही दोनों डायगोनल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं। तो हम निकाल लेते हैं। सो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी डायगोनल का मिड पॉइंट -2 x -2 अपॉन 2 और -1 + 3 अपॉन 2। ये हो गए किसके मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, ई के कोऑर्डिनेट्स हो गए एसी डायगोनल के हिसाब से। वाइल मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बीडी, इसी तरह से सिमिलरली मिड पॉइंट्स ऑफ बीडी 1 + 1 अपॉन 2 0 + y अपॉन 2। अगेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीडी। दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एसी और बीडी का मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अर्थात दोनों के जो प्रतिच्छेद बिंदु है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उनके जो
कोऑर्डिनेट्स है वो सेम होने चाहिए, इसलिए x माइनस 2/2 2/3 माइनस 1 2/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 माने हो गया 1 y/2. Then so we can write it x minus 2/2 is equal to 1 and y/2 is equal to 1. 2/2 1 हो गया तो y/2 कंपेयर कर दिया हमने. x minus 2/2 1 के इक्वल होना चाहिए और y/2 2 के 1 के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, सिंप्लीफाइड किया x minus 2 इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया y इक्वल टू 2. तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 होना चाहिए. अब आए अपन इस पर 13 क्वेश्चन. व्हाट सेज 13 क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन है. इफ PQR बिलोंग टू I, माने PQR बिलोंग टू I इंटीजर नंबर से, तो P डैश Q डैश R माने जो लाइन सेगमेंट है उसमें Q सेंटर में है, तो P to Q, Q to R है, and PR is equal to 10. We have given that PR equal to 10 and coordinates of P and Q are 3, 4 and 7, 7. 3, 4 and 7, 7 respectively. Then find coordinates of R. क्वेश्चन ने बहुत बढ़िया दिया है यहाँ पर क्या कि P to Q, Q to R 3 पॉइंट्स है, PQR वो कह रहा है 3 पॉइंट्स है PQR. क्वेश्चन में इस तरह से नोट किया गया है P to Q to R. कहने का मतलब जो लाइन सेगमेंट है उसमें जो अरेंजमेंट है PQR का वो इस तरह का है कि P के बाद Q, Q के बाद R है, एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ एंड PR इक्वल टू दिया हमें 10 यूनिट्स, और कोऑर्डिनेट्स दिए हैं P के 3, 4, कोऑर्डिनेट दिए हैं Q के 7, 7. देन वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन PQ. वी कैन फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन PQ. तो अपन ने PQ का डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस फार्मूला से 7 माइनस 3 होल स्क्वायर √7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 minus 4 square. So PQ is equal to square of 4 plus square of 3. 16 plus 9, 25. Then under root of 25 equal to 5. PQ is equal to, ये टोटल डिस्टेंस है कितनी 10. ये टोटल डिस्टेंस है 10 और ये डिस्टेंस हमें मिल रही है 5. So QR will be PQ is equal to, then QR equal to PR minus PQ. Then we get QR equal to 5. So QR will be also equal to 5. So ratio between PQ upon QR, PQ upon QR is equal to 5/5, 1:1. It means जब 1:1 में कोई पॉइंट डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि that will be midpoint. Hence Q is midpoint of PR. So Q will be midpoint of PR. Let the coordinates of R will be x y. अब हमने R का ये 7, 7 क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया किसका, PR का. P के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, R को हमने सपोज किया कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x y है. तो अब हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स Q के क्या होना चाहिए, x प्लस 3/2, लेकिन दिया कितना है 7, तो x प्लस 3/2 इक्वल टू 7. इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स कितने होना चाहिए सेंटर के, y प्लस 4/2, y1 प्लस y2/2, लेकिन दिया कितना है 7, तो y1 प्लस y2/2, 4 प्लस y/2 इक्वल टू 7. इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 3 प्लस x इक्वल टू 14. सो x इक्वल टू 14 माइनस 3, अपने को मिला x इक्वल टू 11. 4 प्लस y इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, y इक्वल टू 10. सो कोऑर्डिनेट्स विल बी 11, 10. क्या होगा इसके कोऑर्डिनेट्स, 11, 10. क्वेश्चन नंबर 14 में इफ 2, 1 minus 1 minus 3 and 4, 5 are the coordinates of middle points of sides of a triangle, then find the coordinates of vertices. अब ये दे रहा है कि किसी ट्रायंगल ABC के साइड्स के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, 2, 1 minus 1, 3 and 4, 5 है. देन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस. यदि किसी त्रिभुज या ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हों, मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट्स दिए हों, तो उस त्रिभुज के
शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ vertices of triangle ABC B are x1 y1, a x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। अब हमें मालूम है कि सिंस f45 is the midpoint of side AB का मिड पॉइंट कौन है? F45। इट मीन्स x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 implies that x1 plus x2 is equal to 8, equation number first. Similarly, and y1 plus y2 upon 2 is equal to 5, implies that y1 plus y2 is equal to 5 to 10, equation number second. D21 is the midpoint of किसका है? ऑफ साइड BC। सो BC का मिड पॉइंट कौन है? D21। सो x2 प्लस x3 अपॉन 2 is equal to 2, implies that x2 plus x3 is equal to 4, equation number third. And y2 plus y3 upon 2 should be equal to 1. So y2 plus y3 is equal to 2, equation number 4. Similarly E minus 1 3 is the midpoint of किसका? AC is the midpoint of AC. So x1 plus x3 upon 2 is equal to -1, implies that x1 plus x3 is equal to -2, equation number 5. And y1 plus y3 upon 2 is equal to 3, implies that y1 plus y3 is equal to 6, equation number 6. From अब मैं सम कर रहा हूँ, फ्रॉम 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड 2 प्लस 4 प्लस 6, हमें x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x1 ये 1, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फिफ्थ को सम कर दिए, और ये सेकेंड y वाले जो इक्वेशंस थे y में सम कर दिए। हमने क्या मिला? हमें 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 is equal to 8 plus 4 12 minus 2 10, and y1 2y1 इनको भी सम करोगे, 2y1 plus 2y2 plus 2y3 is equal to 10 plus 2 12 और 12 plus 6 18। ये कितना मिला? 18। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें हम
टू कॉमन ले लें और एक तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10/2 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 18/2। ये 9 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। हमें इक्वेशन मिला x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट वैल्यू फ्रॉम 1 and 2 into 7 and 8 and 7 and 8 what we get, ये है x1 x2 प्लस x2 कितना हो गया 8 प्लस x3 इज इक्वल टू 5 implies that x3 is equal to 5 minus 8 minus 3 and y1 plus y2 equal to 10, तो 10 plus y3 is equal to 9, so y3 is equal to 9 minus 10 कितना हो गया -1। तो x3 y3 हमें मिल गया -3 -1 फ्रॉम 3 and 4। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं स्पेस का, मैं फ्रॉम 3 and 4 वी गेट, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने अभी x2 x3, यहाँ x2 x3 कितना 4, तो 4 प्लस x1 इक्वल टू 5, तो x1 इक्वल टू 5 minus 4 is equal to 1 and y1, अब y2 प्लस y3 हमने रखा, y2 प्लस y3 2, तो y1 प्लस 2 इक्वल टू 9, तो y1 इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो x1 y1 मिल गया 1 7 और लास्ट बच गया 6 और 7 से हम वैल्यू रख दें 5th और 6th से, तो क्या मिल जाएगा x1 प्लस x3 माइनस 2, तो x2 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो x2 इक्वल टू 5 प्लस 2 7। इसी तरह से y प्लस y3 इक्वल टू 6, y प्लस y3 की वैल्यू 6 रखा, 6 प्लस y2 इक्वल टू 9, 6 प्लस y2 इज इक्वल टू 9 implies that y2 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 3, तो x2 y2 मिला हमें 7 3। ये तुम्हारी एक्सरसाइज 13D एंड हो गई। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।